اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا 12واں قسط پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دکاندار نے عبدالکریم کے متعلق یہ بتایا کہ اس کے والدین کے فوت ہونے کے بعد لوگ بجائے عبدالکریم یتیم ہو گیا تھا، سہارا دینے کے اس کے گھر کے بچا کچا سامان بھی اٹھا کر لے گئے تھے اور عبدالکریم بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا تھا۔ عبدالکریم کے والد سے دوستی ہونے کی وجہ سے اس نے عبدالکریم کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ پڑھایا بھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد عبدالکریم اس کے ساتھ دکان میں ہاتھ بٹھاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبدالکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دکاندار مزید اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا، لہٰذا سال بھر دکان پر ہی کام کرتا تھا۔ جو ہی اس موقع پر ملا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ دکاندار نے عبدالکریم کے متعلق جاننے کی وجہ پوچھی تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ عبدالکریم کے ان کے خاندان سے شادی کی بات چیت چل رہی ہے اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے۔ دکاندار نے کہا کہ عبدالکریم ایک انتہائی شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوا غریبی اور یتیمی کے اس میں کوئی نقص نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو اس کو عبدالکریم کے ساتھ بہانے میں فخر محسوس کرتا۔ الغرض عبدالکریم کی بتائی ہوئی سب باتوں کی تصدیق ہو چکی تھی اور اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے ذہن میں تھا وہ ایک خاندانی بے آسرا تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالی گلوچ اور سخت رویے پر شاکی تھا۔ یہ اس خاکے کی پازیٹیو پوسٹ تھا اور دوسرا رخ نیگیٹیو تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایت اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیرخواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچھ لی جا چکی تھی اسے باغی بنا سکتی تھی، یا پھر اس کوئی عزت کی بحالی کے لیے وہ ہمارے متعلق جان کر اپنے افسران کی نظر میں عزت وار بھارت ماتا کا سیوک بن سکتا تھا۔ یہ دونوں کام ممکن تھے، یا پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے۔ کہنے کو تو ہم سب پاکستانی اور ایک قلیل اقلیت کے سوا باقی ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مادری وطن کی عزت، حرمت اور بقا کو پیچھے دھکیل کر اپنی ذاتی مفاد آگے لانے والے وطن فروش اور غدار بھی موجود ہے۔ ورنہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے پاکستان کا قومی پرچم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے، اسے مزار قائد پر نظر آتش کرنے والے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے اور اعلانیہ اس بات کا اعلان کرنے والے ابھی تک زندہ نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر بھی خاموش رہنے والے وطن کی محبت سے بہت اتنے دور ہے جتنے وہ غدار سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں بہن کی گالی سن کر تیش میں آنے والے اور مرنے مارنے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب کو مادری وطن کو گالی دیتا ہے؟ شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو آزادی کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور وہ اپنے ملک میں درپیش مسائل کا حل غلامی میں سمجھتے ہیں۔ یہ لسانی پارٹیاں، یہ لسانی تنظیمیں چاہے اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف میں، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد میں لگی ہوئے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، یا ان کا منشور صرف ملک کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ پاک آرمی کو صرف پیگارڈ کا درجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے سامنے نہ صرف کھڑے بلکہ ایک سیسیا پلائی دیوار کے مانند ہے۔ دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور اسے خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے۔ پاکستان میں دہشت گردی اور خودکش دھماکے کرنے والے اگر پاکستانی ہے تو وہ یقیناً دشمن کے ایجنٹ ہے۔ عبرتناک موت ان کا مقدر بن چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان طاغوتی چوہوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال میں میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا بہتر سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ نکتہ جاننے کی کوشش کی۔ 2 ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبدالکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے سمجھایا جائے یا ڈرایا جائے یا مجبور کیا جائے۔
कि वो हमारा साथ दे वरना इसे वही ख़त्म कर दिया जाए। एक साथी ने कहा कि रात को कर्नल शंकर के रूम में घुसकर उसे हलाक कर दिया जाए और उसे के कमरे से ब्रीफकेस और अहम कागजात उड़ा लिया जाए। ये दोनों तजावीज़ थोड़ी सी बहस के बाद रद्दी कर दी गई। पहले इसलिए कि अब्दुल करीम अपनी ज़ाती हैसियत में कोई अहमियत नहीं रखता था। उठाए जाने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए साथ देने का वादा भी कर सकता था और बाद में अपने नंबर बनाने के लिए मकर भी सकता था। कर्नल को अगर हलाक कर दिया जाता तो इस बात की क्या ज़मानत होती कि इसके कमरे से मिलने वाले कागजात किसी अहमियत के हामिल भी होते या नहीं। इन दो सूरतों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हो जाती और सबसे पहले मैं पकड़ा जाता, क्योंकि कर्नल से मिलने वालों में मेरा नाम सरपरस्त था। बलाखिर फैसला हुआ कि इन दोनों पर्सन्स को स्टैंड 2 में रखकर बाकी एक्टिविटीज़ पर अमल किया जाए और हेडक्वार्टर में दाखिले के लिए मज़ीद रबते तलाश किए जाए। अब हमने फ़िलहाल यशवंत सुप्रिंटेंडेंट और 2 ईसाई स्वीपर्स पर मरकूज कर दी। अगले रोज़ हम हेडक्वार्टर से छुट्टी के टाइम पर करीबी बस स्टॉप पहुँच गए। हम यशवंत के साथ एक ही बस में सवार हो गए और मैंने इसका घर भी देख लिया। मैंने अपने 2 साथियों को सफाई वालों के पीछे लगा दिया था कि इनसे वाकिफियत पैदा कर दे और इस तरह दफ्तर के बाद इनकी सरगर्मियों का पता करे और ज़रूरत पड़ने पर इनके साथ शामिल भी हो जाए। दूसरे साथियों की ड्यूटी लगाई कि दफ्तर की यशवंत निगरानी करे और जिस दिन वो गाना सुनने जाए एक इसका पीछा करता रहे ताकि इसे बालाखाना निशानदेही हो सके जहाँ यशवंत मौजूद हो। और दूसरा साथी मुझे इन्फॉर्म करने के लिए चौड़ी बाजार के शुरू में एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ मैं शाम 7 बजे मौजूद होऊंगा। ये महीने की शुरू की तारीखें थी और मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तकरीबन तीसरी या चौथी शाम थी जब मेरे साथी ने रेस्टोरेंट में आकर मुझे इशारा किया और थोड़ी देर तक हम इस बालाखाने के नीचे खड़े थे जिस बालाखाने में यशवंत गया था। मैंने एक साथी को रुखसत किया क्योंकि इस शाम मेरा प्रोग्राम सिर्फ यशवंत से मिलना और ताल्लुकात बढ़ाना था। मैं बालाखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर इसे सजे सजाए कमरे में पहुंच गया जहाँ नाच गाना होना था। निशस्त परशी था, चारों तरफ गाँव तकिए सलीके से रखे हुए थे। अभी महफिल शुरू नहीं हुई थी। नायिका ने मुझे खुशामदीद कहा। मैं यशवंत की साथ वाली निशस्त पर बैठ गया। चंद मिनट बाद मुझे नकली तश्तरी में पान पेश किया गया। मैंने पान उठाकर 20 रुपये तश्तरी में रख दिए। थोड़ी देर बाद सारिंदे आ गए और अपने साजों को दुरुस्त करने लगे। अभी गाने की तैयारियां हो रही थी कि यशवंत और 2-3 दूसरे लोगों के सामने गिलास और सोडा की बोतलें आ गई। यशवंत ने जेब से शराब का आधा बोतल निकाला। दूसरे लोगों के लिए नायिका ने पिछले कमरे से शराब की बोतलें मंगवा ली। बड़े अदब से नायिका ने मुझसे पूछा कि मैं क्या शौक करूंगा। हमारे पास आपकी खिदमत करने के लिए स्कॉच, विस्की और आला किस्म के शराब मौजूद है, आप हुक्म करें। मैंने उसे कहा कि आज मैं पीने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ ठंडा मशरूब पीऊँगा और थोड़ी देर में मेरे सामने कोका कोला की 2 यख बस तब बोतलें रख दी गई। नायिका ने कहा कि आपने फरमाया था कि आज मूड नहीं, जिसका मतलब कि आप पीते ज़रूर है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपका मूड बन जाएगा। इसलिए जब भी मूड बने बिला झिझक तलब फरमा लीजिएगा। महफिल का आगाज़ नीम क्लासिकी गानों से हुआ। यशवंत इस दौरान अपने आधे का आधा हिस्सा पी चुका था। मैं यशवंत पर कड़ी नज़र रखे हुए था कि इसकी नज़र करम किस तवाइफ पर है। नीम क्लासिकी मौसीकी का दौर ख़त्म हुआ। इस दौरान 3 जवान तवाइफ पे अपने पैरों में घुंघरू बांधने लगी। यशवंत ने बोतल में बची हुई सारी शराब गिलास में अंडेली और थोड़ा सा पानी मिलाया और घटाघट पी गया। इन तीनों तवाइफों ने तमाम तमाशबीनों के दरमियान आकर परशी सलाम किया। अभी वो तबले और सारिंदों के साथ कदम मिला रही थी कि यशवंत ने अपनी दूसरी जेब से एक और अदक निकाला और भारत की बनी हुई शराब रम की एक किस्म थी। चूँकि बोतल गोल और आधे चपटे बने होते हैं इसलिए बासानी जेब में आ जाते हैं। यशवंत ने दूसरी बोतल से कुछ शराब गिलास में अंडीली पानी मिलाया और चढ़ा गया। वो पूरी तरह से नशे में चोर था। जब गाना शुरू हुआ तो वेल के 1 रुपये की थी। नाचने वाले तीनों लड़के ने रुक़स शुरू कर दिया। इन दोनों के कदम और रुक़स के ज़ाविये एक दूसरे से इतने मिले हुए थे कि वो एक ही जिस्म के 3 हिस्से दिखाई देते थे। इनके रुक़स ने महफिल को गरमा दिया और वेल अब 1 रुपये से 5 रुपये तक पहुँच चुकी थी।
मुझे चूंकि वहाँ यशवंत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना और तवाइफों पर अपनी इमारत का रौब भी डालना था, लिहाजा मैंने 10 रुपये की व्हील शुरू कर दी। बालाखाने का रिवाज होता है कि जो ज़्यादा व्हील पेश करे उसके सामने नाचना और नाचते हुए बैठकर व्हील लेना होता है। 10 रुपये की व्हील पर दूसरे तमाशाई को चूंसेगा और मैंने रुपए के 10-10 नोटों के 10 पैकेट बनाकर व्हील देनी शुरू कर दी। लेकिन व्हील देने में वक्फा बढ़ा दिया। ये वक्त था जब मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन के मज़दाक अपनी इमारत का रौब जमाना था। मैंने व्हील 20 रुपये की कर दी। बालाखाने के उसूल है 2 या 2 से ज़्यादा अफराद अगर व्हील पेश करे तो इनमें ज़्यादा पैसों की व्हील दे तो अब इसके पास पहले आती है। मैं अपने हमरा खासी रकम ले गया था। 20 रुपये की एक गुड्डी के अलावा 100 रुपये के 60 नोट मेरे पास थे। बैक वक्त यशवंत ने और मैंने यशवंत की मखसूस तवाइफ को वेल देने के लिए इशारा दिया। मेरे पास 20 का नोट था और यशवंत ने 10 का नोट आगे किया हुआ था। तवाइफ सीधी मेरे पास आई और टके टकाकर नोट लेकर उठने लगी तो मैंने 20 का एक और नोट इसके आगे करके उसे बिठा लिया। 20 वाले नोटों की गुड्डी मैंने अपने सामने रखी हुई थी। एक के बाद एक नोट निकालकर तवाइफ को उठने नहीं दे रहा था। यशवंत ने अपना हाथ जिसमें 10 का नोट पकड़ा हुआ था पीछे कर लिया। मैंने अपना सिलसिला जारी रखा। यशवंत मायूस होकर उठने लगा तो मैंने बाजू से पकड़कर उसे बिठा लिया और कहा, यशवंत बाबू ये क्या? वो एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ हैरान सा हुआ। मैंने बेतकल्लुफी से अपना एक बाजू इसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब कर लिया और दूसरे हाथ से व्हील पहले यशवंत के सर पर रखे और फिर इसके माथे और गालों पर रख देनी शुरू कर दी। तवाइफ का किया था उसे तो नोट इकट्ठे करने थे। मेरी दी हुई वेले तवाइफ यशवंत के सर और गालों से चटकियाँ भर कर ले रही थी। शराब के नशे में मदहोश यशवंत ने 1-2 बार रस्मी तौर पर मुझे रोकने की कोशिश की मगर फिर महबूबा के टमके और कुर्बत ने उसे बेबस कर दिया। इस दौरान दूसरी 2 तवाइफें मुसलसल नाच रही थी और बेदिली से दूसरे तमाशबीन को दी हुई वेले ले रही थी। कुछ तमाशबीन मुकाबले की सख्ता न रखते हुए उठकर जा चुके थे। सारिंदों ने भी इस दौरान न्यू दन शुरू की लेकिन मैं यशवंत की महबूबा को उसके सामने से उठने न दिया। अगर मेरी व्हील का वक्फा 45 सेकंड भी लगाया जाए तो मैंने यशवंत की महबूबा को 1 घंटे से ज़्यादा इसके सामने बिठा रखा। दूसरे 2 तवाइफें नाच नाच कर बेहाल हो चुकी थी। मेरी गुड्डी में सिर्फ 4-5 नोट बाकी रह गए थे तो मैंने 100 रुपये की 20 नोट नायका को मुखातिब करके उसकी तरफ फेंक दिए। इससे पहले कि मेरे 4-5 नोट ख़त्म होते 20 रुपये वाली गुड्डियाँ मेरे सामने रख की जा चुकी थी। नायका ने अब मुझसे इकट्ठी रकम ईंटने के लिए रक़स बंद करवाई दिया और एक तरह का वक्फा हो गया। नायका ने सबसे खाने का पूछा। मैंने सीख कबाब और पराठे मंगवाने। यशवंत ने भी कबाब और पराठे मंगवाए। मैंने 1000 नायका की तरफ उछालते हुए कहा कि मैं और यशवंत और इसकी महबूबा खाना इकट्ठे पिछले कमरे में खाएंगे। नायका ने हामी भर ली। हम तीनों ने पिछले कमरे में खाना खाया। खाने के बाद अब महफिल का दूसरा हिस्सा शुरू होना था। यशवंत इतनी ज़्यादा पी चुका था कि लड़खड़ा कर कभी इधर गिरता और कभी उधर। मैंने नायका को कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रही इसलिए हम चलते। ये कहते हुए मैंने नायका को मज़ीद 500 रुपये दिए और यशवंत को संभालते हुए नीचे आ गए। मेरा साथी रेस्टोरेंट में मेरा मुंतज़िर थे। मैंने इसकी टैक्सी लाने को कहा। जल्द ही टैक्सी आ गई। चौड़ी बाजार के पीछे तंग गलियों में जिस्म फरोश का धंधा होता था। मैंने वहाँ टैक्सी रोकी। यशवंत को टैक्सी में ही खराटे भरने लगा। मैं इस गली में गया। गली में एक हेड कांस्टेबल और एक सिपाही पहरे पर खड़े थे। मैंने इनकी तलबी निगाह बांध कर 50 रुपये हेड कांस्टेबल के मुट्ठी में रख दिए। उसने मुस्कुराते हुए मुझे जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैंने एक गली का एक सरे से दूसरे सरे तक चक्कर लगाया और एक जवान और साफ सुथरी औरत के पास गया। छोटे मोटे गलीज कमरों में सिर्फ 8-10 ही खुले थे, बाकी सब बंद थे। मैं इस औरत के करीब गया तो वो बोली 1 घंटे का 30 रुपया लूँगे। मैंने कहा 300 दूंगा और 1 घंटे में वापस भी छोड़ जाऊंगा। वो कुछ सोचने लगी। मैंने कहा 500 दूंगा। इसने दिलावरे नाम के किसी मर्द को बुलाने के लिए आवाज़ दी और मेरी अपर बताई। दिलावरे बोला कहाँ ले जाने हैं? मैंने कहा दरियागंज। उसने कहा कोई चक्कर है? मैंने जवाब दिया हाँ, एक हिंदू को जिसने कई मुसलमान लड़कियों को ख़राब किया है उसे रुसवा करना है। उसने कहा आप मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ। इसने कहा सबूत? मैंने कहा कि कमरे में आओ सबूत दिखाता हूँ।
सबूत देखने के बाद वो मुतमईन हो गया। इसने कहा कि आपने इधर उधर की बात करने की बजाय सच्ची बात की है। अब मुझे बड़े आदमी लगे वो मैं जरी को अब इसके साथ भेज देता हूँ। 1 घंटे की बजाय आप उसे बेशक सुबह तक अपने पास रख के मगर सुबह तक वापस छोड़ जाए। और एक बात, 1 से ज़्यादा आदमी इसके पास न जाए। मैंने उसे कहा 1 आदमी भी नहीं जाएगा, हमें बस इस हिंदू को रुसवा करना है। और बस इसने जरीन को मेरे साथ जाने का कहा और ख़ुद कमरे के अंदर चला गया। जरीन 5 मिनट में मेकअप दुरुस्त करके बाहर आ गई और मैं उसे लेकर गली से बाहर आ गया। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर मैं बैठ गया। पिछली सीट पर यशवंत, साथ जरिया और साथ मेरा साथी बैठ गए। मैंने उसे दरियागंज जाने का कहा। दरियागंज जाने के रास्ते में कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ दरख्त और झाड़ियाँ थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो उधर रुक जाए। अपने साथी को मैंने सोए हुए यशवंत को झाड़ियों के पीछे ले जाने का कहा और जरी को उसके पीछे जाने का कहा कि ड्राइवर, मैंने 100 का नोट देकर कहा कि गाड़ी का हॉर्न उठाकर यूँ खड़े हो जाओ जैसे इंजन ख़राब हो गया है। हम 15-20 मिनट में वापस आते। वो हंस लगा और बाबूजी सिर्फ 20 मिनट जाओ बाबूजी, मौज करो। मौज खालिसा तोड़ा ईते 4 घंटे भी इंतज़ार कर लेगा। चौड़ी बाजार और फिर जिस्म परोशी के अड्डे से एक औरत को साथ लाते हुए वो हमारे इरादे को समझ गया था। मैं हंसा और इसके हाथ पर हाथ मारकर खुद भी झाड़ियों के पीछे चला गया। यशवंत नशे में चोर जमीन पर ढेर पड़ा था। मेरे साथी को भी इल्म न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे यशवंत के सारे कपड़े उतारने का कहा। इधर जरी को भी कहा कि वो भी इधर आउट में अपने सारे कपड़े उतार दे। 5 मिनट में दोनों कपड़े से आज़ाद हो चुके थे। मेरा साथी और मैं दोनों मुसल्लह थे। मेरे साथी के पास 2000 रुपये थे। मैंने उसे सारी रकम ले ली और अपने भी सारे नोट निकाल कर यशवंत के हाथ में पकड़ा दिए। यशवंत को मेरे साथी ने ज़मीन पर बैठे बैठे खड़ा करके सहारा दिया। मैंने जरी से कहा कि वो यशवंत के बिल्कुल साथ खड़े होकर यशवंत के सीने पर अपना सर रख दे। अब पूस कुचयूता के दोनों बिल्कुल नंगे झाड़ियों के पीछे खड़े थे। जरी इसके साथ लिपटी हुई थी और यशवंत ने अपना हाथ इसके पीछे से निकालकर इसके जिस्म के सामने रखा हुआ था। मैंने साथी से कैमरा लेकर इस पोज में और कई दूसरे पोजीशन में 12 तस्वीर ले ली। इसके बाद नोट में यशवंत के हाथ से लेकर अपने पास रख लिया। साथी ने यशवंत को कपड़े पहना दिए। जरी ने अपने कपड़े पहने। इस काम से पारे होकर हम जब टैक्सी के पास गए तो तकरीबन इस सारे काम में 30 मिनट लगे थे। तो दोस्तों ये था गाजी नावल का 12वां किस्त 13वां किस्त कल इंशाल्लाह उर्दू दुनिया के स्क्रीन पर आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा। तब तक अपने आप का, हमारा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।